Hello friends, after completion of our topic set theory, and now we are going towards the continuation of set theory, that is the cross product of two sets. So cross product of two sets. What is cross product of two sets? It may also taken as Cartesian product of two sets. So Cartesian product of two sets and cross product of two sets are the same thing. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में आप क्या देखेंगे? इफ ए एंड बी आर द टू non-empty sets, non-empty sets, then A cross B contains AB type of ordered pairs where A is the element of A and B is the element of B. Means A cross B contains AB type of pairs where A belongs to A and B belongs to B. मतलब जो फर्स्ट एंट्री होगी वो A सेट में होनी चाहिए और जो सेकंड एंट्री होगी वो सेट B से बिलोंग करनी चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज मेरे पास एक सेट है A, इसमें मैंने आपके लिए राइट कर दिया इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, राइट. तो ए बी सी नहीं ले रहा मैं, 1 2 3 लूंगा क्योंकि मुझे फिर आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयार करना पड़ेगा. So B is 4 and 3. Suppose these 2 points are there. B set contains 2 points only. And now we are taking A cross B. So what will you do? You will take the product of this one with these two elements. Now we are defining A cross B. What is A cross B? When you take A cross B, so you have to take 1 with 4 and 1 with 3. Then 2 with 4, this element with 4 and 2 with 3. After that, 3 with 4 and 3 with 3. So we have 6 pairs. And these 6 ordered pairs have the same characteristic. First element, 1 and 2. You can see 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. These are the elements which are belonging to the set A. And 4, 3. You can see 4, 3. These are the elements of set B. Means A contains first element of the ordered pair and B has 4 and 3 which are belonging to the set B. So A cross B has AB type of ordered pairs where A is the element of A and B is the element of set B. This is a simple cross product. And whenever you take B cross A, अगर suppose आपने लिया B cross A, तो what will happen? तो B cross A जब आप लेंगे तो आपके पास इसको लिखा जा सकता है B cross A, 4 with 1 and 4 with 2 and 4 with 3. 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3. तो मीन्स 4 and 3 आर द टू एलिमेंट्स जो कि आपको क्या लिखने हैं, फर्स्ट पोजीशन पर राइट करना है. और जो 1 2 3 है वो किससे बिलोंग करते हैं? ए से. जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट आपको सेकंड पोजीशन पर राइट करना है. अब यहां पर अगर हम कुछ बातों को ऑब्जर्व करें तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए. पहली बात तो देखिए, इसमें जो एलिमेंट है 1 4 वो 4 1 के इक्वल नहीं है. देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब वो एक्स है. और जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है? वाई है. मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि भाई ये 1 2 3 4 ये एलिमेंट है और आपके पास 1 2 3 ये वाले एलिमेंट है, राइट. एक और ले लेता हूं, मान लो 4 ये. वी आर ऑब्जर्विंग दैट here this is the point 1 4. So 1 4 we can mark here and this is 4 1. So 4 1 is here. Now these 2 points have different positions. ठीक है. अब इनकी डिफरेंट पोजीशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 4 जो है वो 4 1 के इक्वल नहीं है. अब 1 4 4 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो बाकी टर्म्स है आपके पास वो भी इस कंडीशन को फॉलो करती है. 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1. इट मींस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. तो आवर फर्स्ट कंडीशन इज A क्रॉस B is not equals to B cross A, means product is non-commutative, means Cartesian product or cross product is not commutative. And second one is, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें number of elements in A cross B, what will happen? Number of elements का मतलब how many pairs are there. तो how many pairs are there? 6 pairs are there. You can write 6. Similarly, we can find
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, अगर आप बी क्रॉस ए में देखेंगे तो उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तीसरी बात अगर हम ऑब्जर्व करें, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो आप देखेंगे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, दैट इज 2। तो वी हैव ऑब्टेन द कार्डिनलिटी ऑफ ऑल द सेट्स। तो जब सारे सेट्स की हमने कार्डिनलिटी देख ली, तो कार्डिनलिटी लेने के बाद अगर हम देखें तो इसका रिलेशन क्या है, this is equals to number of elements in A into number of elements in B, that is also equals to number of elements in B cross A. Means cardinality of A cross B is always equals to cardinality of B cross A, but A cross B never equals to B cross A, right? And number of elements in A into number of elements in B, that represents the number of elements in A cross B. तो ये दो रिजल्ट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्पिटेटिव, बट whenever you find the number of elements in A cross B, that is always equals to number of elements in B cross A. तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, वो आपको क्लियर हो गया किस तरीके से आप निकालेंगे। पर कभी कभी क्या होता है, आपके पास ऐसा भी गिवन होता है, हाँ एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, लाइक कहीं पर आपको दे दिया आर स्क्वायर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर स्क्वायर? तो आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। हियर आर इज सेट ऑफ रियल्स, आर इज सेट ऑफ रियल्स, मतलब आप रियल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रियल नंबर्स के साथ लेंगे। जब रियल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रियल नंबर के साथ लेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, इसमें एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जबकि एक्स एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, आर से, और वाई एलिमेंट भी किससे बिलोंग करता है, आर से। मींस टू डायमेंशनल प्लेन, राइट, टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें पूरे प्लेन पर जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे, दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ऑल द पॉइंट्स लाइक एक्स वाई, like in the form of ordered pairs, all lying in the or in this plane. So that is a two-dimensional space. It is called two-dimensional space. ठीक है, somewhere we have r क्यूब। आर क्यूब का मतलब आर क्रॉस आर, मीन्स जो आपने आर स्क्वायर निकाला उसका प्रोडक्ट आपने आर के साथ लेना है। जब आप आर स्क्वायर का प्रोडक्ट आर के साथ लेंगे, इट बिकम्स आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब इट कंटेन्स थ्री डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जेड, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, एंड जेड बिलोंग्स टू आर। मीन्स ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, मतलब एक्स वाई जेड कोई से भी तीन रियल नंबर हो सकते हैं, तो दैट बिलोंगिंग टू द थ्री डायमेंशनल प्लेन, राइट। तो जहां पर एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस भी होगी, वहां पर किस टाइप का स्पेस होगा, आर क्यूब स्पेस होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फोर डायमेंशनल स्पेस, फाइव डायमेंशनल स्पेस, और बाद में हम एन डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, जब हम हायर मैथमेटिक्स की कंडीशंस में चलते हैं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इसको आर एन में राइट करते हैं। तो आर एन का मतलब होता है एन डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये चीज डिस्कस कर ली आपसे कि हाउ विल यू गेट द रियल नंबर्स, दैट इज वन डायमेंशनल, आर स्क्वायर इज टू डायमेंशनल, आर क्यूब इज थ्री डायमेंशनल, दैट इज ऑल्सो कंसर्न विद दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, कि इफ ए इज वन माइनस वन, अगर एक सेट में टू एलिमेंट्स हैं वन एंड माइनस वन, और आपसे कहा जाए कि फाइंड ए क्रॉस ए, व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब है पहले आपको बेसिकली ये ए क्यूब ही हो गया आपका, ठीक है। तो ए क्यूब, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड ए क्रॉस ए। तो व्हाट विल हैपन, यू विल मल्टीप्लाइंग दिस वन माइनस वन विद वन माइनस वन, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन माइनस वन विद वन माइनस वन। तो व्हाट विल हैपन, सपोज मैंने एक बार फिर से लिख लिया वन माइनस वन। अब आप क्या करेंगे, वन के साथ वन का प्रोडक्ट यानी कि वन वन, वन का माइनस वन के साथ यानी कि वन माइनस वन, फिर माइनस वन का वन के साथ तो माइनस वन वन, एंड माइनस वन का माइनस वन के साथ, दैट इज माइनस वन माइनस वन। तो वी ऑब्टेन फोर ऑर्डर्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर टू, and in this also 2, so 2 into 2 becomes 4, so there are four ordered pairs, and if we take a cross a, तो what will happen, आप इसका प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो वी गेट वन वन वन। ये चीज ध्यान रहे कि आपका जो ये ब्रैकेट था, ये आपने यहां पर यूज नहीं करना, वन वन ट्रीटिंग एज ए सिंगल एलिमेंट, एंड दैट सिंगल एलिमेंट टेकिंग दैट सिंगल एलिमेंट हैज द क्रॉस प्रोडक्ट विद वन। तो वन वन वन, दैट इज थ्री डायमेंशन एलिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद वन वन माइनस वन, वन वन
-1, उसके बाद 1 -1 1 के साथ, 1 -1 1 के साथ, और उसके बाद फिर 1 -1 -1 के साथ। तो वी हैव 4 एलिमेंट्स विद दिस। आफ्टर दैट इसको जब आप लेंगे तो -1 1 1 and -1 1 -1, after that -1 -1 1 and -1 -1 -1, तो we obtain these 8 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर 3 सेट्स भी गिवन हो तो आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो 3 सेट्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसमें मैं एक प्रॉपर्टी आपको और बता दूं कि अगर सपोज हमारे पास 3 सेट्स अवेलेबल हो, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके लिए और कंसीडर करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। सपोज हमारे पास एक सेट है, इट हैज 1 and 2 and B set contains 3 and C set has one element that is 1। अब मैंने आपको बोला आप A क्रॉस B फाइंड आउट करो, ठीक है, तो A क्रॉस B का मतलब 1 with 3 and 1 with 2, सॉरी 2 with 3। आफ्टर दैट अगर मैं आपसे कहता हूं A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1 3 with 1, तो 1 3 with 1 and 1 2 3 with 1। आफ्टर दैट मैं आपसे कहता हूं बी क्रॉस सी निकालिए, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, तो वी ऑब्टेन 3 1 ओनली सिंगल पेयर, दैट इज सिंगलटन सेट, राइट, सिंगलटन सेट। द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए, तो ए का प्रोडक्ट आपने बी क्रॉस सी के साथ करना है, तो 1 3 1 एंड 2 3 1, तो दैट बिकम्स दिस। अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग अगेन, इसमें क्या है, आपके पास यहाँ पर फिर से 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और देखिए दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। सेम का मतलब क्या हो गया कि A क्रॉस B क्रॉस C is always equals to A क्रॉस B क्रॉस C, मींस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, मींस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि जो सेट आप पहले लिख रहे हैं उसके मेंबर्स आपने आगे लिखनी है, और जो सेट आप बाद में यूज कर रहे हैं उसके मेंबर्स आपने बाद में राइट करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कंडीशंस कहीं पर आती हैं तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो 2 सेट्स का भी पता चल गया, 3 सेट्स का भी पता चल गया, और इसकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब कई बार हमें क्वेश्चन इस टाइप का भी मिल जाता है, देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम, वो बेसिकली क्या है, इनका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, आपको कई बार क्या होता है, सेट गिवन होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो सेट है वो आपको गिवन होता है, या उसके अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे होते हैं और आपको सेट्स इवेल्युएट करने होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या दिया हुआ है आपको, इफ n of a cross b means number of elements in a cross b are 6 and number of elements in a are 3 and a cross b has these 3 elements। ठीक है, find a and b एंड ऑल्सो फाइंड आउट ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, बट हमें क्या दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, आपको बाकी खुद फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमें कहीं मिल जाए तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस क्या करना है, सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपको 6 दे रखे हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये हमारा रिजल्ट होता है। जबकि आपको इसके अंदर भी एलिमेंट्स पता है 3 है, तो मैं निकाल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वो मुझे पता चल गया कि वो कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक काम ये खत्म हो गया। अब जब आप सेट की डेफिनेशन लिखेंगे ए क्रॉस बी की, तो वो क्या होती है, इट कंटेन्स ए बी टाइप ऑफ पेयर्स वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। जो ए टाइप के एलिमेंट है वो सेट ए में होंगे, बी टाइप के एलिमेंट सेट बी में होंगे। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं 1 -1 2 -1 and 3 1, these all are the elements of A cross B। now what will happen, ये जो फर्स्ट एंट्री आपके पास है ये किससे बिलोंग करेंगे, ये सारे के सारे सेट ए से बिलोंग करेंगे, है ना। और जो सेकंड एंट्री है बी टाइप के एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेंगे, मतलब these 3 elements are belonging to the set B। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं कि ए सेट में क्या होगा आपके पास 1 2 and 3, और बी सेट में आपके पास क्या होंगे -1 1।
अब ये तो क्लियर हो गया कि ए सेट के अंदर हमारे जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है वो है, और बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं जो सेकंड पोजीशन पर है। अब करना क्या है, अब आपको ए क्रॉस बी फिर से फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी में फिर से फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा, 1 - 1 1 1, उसके बाद 2 - 1 एंड 2 1, ये हम पहले कर चुके हैं। 3 - 1 3 1, तो हमारे पास क्या आ गए, 6 एलिमेंट्स आ गए। उन 3 की हेल्प से हमने अदर 3 भी फाइंड आउट कर लिए। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो पूछा गया था फाइंड ए एंड बी, पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि फिर से अगर हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाहें तो हम ए क्रॉस बी फिर से फाइंड आउट कर लेंगे। 3 एलिमेंट्स आपको पता थे और 3 एलिमेंट्स आपको और मिल गए। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी ऑल्सो, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया। तो 11th क्लास में हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है इन द सेकंड चैप्टर आफ्टर द सेट थ्योरी, क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। वैसे इस चैप्टर का नाम रिलेशंस है, पर रिलेशंस करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स करना पड़ता है। इसके बाद मैं आपके पास लेके आऊंगा रिलेशंस का वीडियो, उसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिलेशंस जो है हमारी लाइफ में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलता हूं, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे।